ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ رات کی تاریکی ٹرین کے اندر اور باہر یکساں اندھیرا کیے ہوئے تھی۔ اپنے ارد گرد سے بے خبر وہ مسلسل آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا میں اپنے ماں باپ اور اس کے جلاد جیسے باپ کی امیدوں پر پورا اتر سکتا ہوں؟ یقیناً نہیں۔ اپنی سوچ پر خود ہی مسکراتے اس نے پینٹ کی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی۔ مجھ سے آج تک جو کام صحیح ہوئے ان میں میرا بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ اس لیے صحیح ہوئے کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے تھے، اور جو غلط ہوئے تو وہ میرے سے تو کیا ٹھیک ہونے تھے، کسی دوسرے سے بھی درست نہیں ہونے تھے۔ شان نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کی راکھ باہر پھینکی تھی۔ پھر ان لوگوں کو مجھ سے اتنی امیدیں کیوں ہیں، جبکہ میرا سابقہ ریکارڈ بھی بہت خراب ہے۔ بہت کا لفظ تو میں نے مروت میں استعمال کیا ہے، اصل میں خراب ہی خراب ہے۔ آدھی جلی سگریٹ شایان نے باہر پھینک اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ آخر ایسا بھی کیا ہے جو اسے اب تک 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے؟ اچھی خاصی لڑکی ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ آخری بار میں نے اسے ماموں کی شادی پر دیکھا تھا، تب تک تو سبھی اس کے گن گا رہے تھے، اور وہ بھی اس سے پہلے کہ شایان اس کے بارے میں مزید سوچتا۔ اپنے ساتھ کی گئی اس کی بدتمیزی یاد آ گئی۔ ایک نمبر کی بدتمیز اور بد لحاظ لڑکی ہے، تبھی طلاق ہوئی ہوگی۔ شایان سوچتے ہوئے دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اگر تجھے نیند نہیں آ رہی تو میرے لیے چائے ہی لے آ جا کر۔ سرمد نے شایان کی بے چینی نوٹ کرتے ہوئے برتھ سے آواز لگائی تھی۔ تو ابھی تک زندہ ہے؟ دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا تھا۔ شایان نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اوپر دیکھا۔ اگر تو نے مزید مجھے کچھ دیر کھانے کو نہ دیا نا تو یقیناً مجھے کچھ ہو جائے گا۔ سرمد کے جواب پر شایان نے سر نفی میں ہلایا۔ تیرے ساتھ تو پتہ نہیں اللہ نے کون سا معاملہ رکھا ہے، ورنہ عام انسان تو اتنی دیر بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ سرمد نے برتھ سے نیچے چھلانگ لگائی تو دھمک کی آواز سے کچھ سوئے ہوئے مسافر بیدار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بزرگوں کہاں اترنا ہے؟ سرمد کے سوال پر وہ ادھیڑ عمر شخص اسے گھورتے ہوئے دوبارہ آنکھیں موند گیا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ایک تو میں ان کی مدد کر رہا تھا کہ کہیں بے خبری میں ان کا اسٹیشن ہی نہ گزر جائے، اور وہ سرمد نے اپنے سامنے بیٹھے شایان کی طرف دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں جہلم آ جائے گا، جو کچھ لینا ہو ایک ہی دفعہ لے لینا۔ شایان نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے سرمد کی طرف بڑھائے۔ ظالم انسان، اتنے تھوڑے پیسے، ان میں کیا آئے گا؟ مجھے پتا ہوتا کہ تم ملتان سے راولپنڈی مجھے یوں اس ٹرین میں ہلا ہلا کر بھوکا پیاسا لے کر جائے گا نا، تو میں کبھی تیرے ساتھ نہ آتا۔ سرمد نے منہ بناتے ہوئے پیسے جیب میں رکھے۔ ملتان تو جیسے وہ بڑے ٹھاٹ سے رہا تھا۔ میرا منہ مت کھلوانا، سارا دن درگاہ پر پڑا رہتا تھا اور لنگر۔ شایان کی مسکراہٹ طنز میں بدلی۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب یاد ہے۔ سرمد بد مزہ ہوتا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جبکہ شایان ایک بار پھر پرانے واقعات کے تانے بانے بننے لگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ سرمد نے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہلم کا اسٹیشن پہلے آئے گا، شایان نے بے خیالی میں جواب دیا۔ میں تیری کزن کا نام پوچھ رہا ہوں، اسٹیشن کا نہیں۔ سرمد چڑا تھا۔ دعا فاروق نام ہے اس کا، شایان نے آہستہ سا زیر لب دہرایا۔ اسے تو میرے خیال سے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اگر وہ اپنا نام تبدیل کر لے تو کافی امپروومنٹس آئیں گی۔ کیا خیال ہے؟ سرمد نے اپنی بات کی تائید شایان سے چاہی۔ تو نے راولپنڈی پہنچنا ہے یا یہاں سے ہی واپس جائے گا؟ شایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی عادت مجھے تیری سب سے بری لگتی ہے، یہ جو تو منٹ کے بعد دھمکیاں دینے لگتا ہے نا۔ سرمد کہتا ہوا باہر دیکھنے لگا، جہاں جہلم کا اسٹیشن رات میں اپنی چمک دمک سے مسافروں کی توجہ حاصل کر رہا تھا۔ دعا بیٹا کہاں ہے؟ فاروق صاحب نے عذرا بیگم سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے کہاں ہونا ہے، اپنے کمرے میں ہی ہے، عذرا بیگم نے ناگواری سے جواب دیا۔ ایک تو وہ بن ماں کی بچی ہے، اوپر سے جو کچھ اس کے ساتھ ان 3 سالوں میں ہوا ہے وہ بالکل زندگی سے دور ہو کر رہ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے زندگی کی طرف لانے میں میری مدد کریں، آخر آپ میری بہن ہیں، پھپھو ہونے کے ناطے آپ کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا۔ فاروق صاحب نے فکر مندی اور دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھا۔ بھائی صاحب معاف کیجیے گا، مگر یہ سب آپ کی ڈھیل اور نرمی کا ہی نتیجہ ہے۔ میں آپ کو سمجھاتی رہی مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس میں کسی اور کا نہیں، آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ ہر وقت بیجا حمایت، ہر ضد پوری کرنا، ہر فرمائش سر آنکھوں پر۔ اس لڑکی کو حکمرانی کی عادت پڑ گئی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ خود سوچیں، ایک دفعہ تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر دوسری دفعہ میرا تو دل نہیں مانتا۔
ये कोई ड्रामा है। अज़रा बेगम ने हमेशा की तरह दुआ के खिलाफ जहर उगला था, जिस पर फारूक साहब सर्द आह भरकर रह गए। वो कब तक आएगा? अज़रा बेगम ने जाते जाते पलट कर सवाल किया, जिस पर फारूक साहब ने नासमझी से उन्हें देखा। आपके साले का बेटा। अज़रा बेगम के लहजे में तमस्कुर का अंसर नुमाया था। अज़रा, सोच समझ कर बोला करो, वो कोई आम इंसान नहीं है। उसके आबाओ अजदाद खानकाह की गद्दी नशीं चले आ रहे हैं। बड़ा दीनदार घराना है उनका। मैंने सुना है कि उनके पास लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर आते हैं और शिफायाब भी होकर जाते हैं। फारूक साहब के लहजे में फ़ख्र था। रहने दीजिए भाई साहब, सब फ्रॉड, सब धोखा है। ये लोग मासूम आवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। आपका ससुराल मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा, जाहिल कहीं के। अज़रा बेगम ने हकारत से फारूक साहब की तरफ देखा। अज़रा, कुछ तो खुदा खौफी करो, अल्लाह वाले लोग हैं वो। फारूक साहब को दुख हुआ था। हम अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर अफसोस हमारे ख़ानदान को ये गद्दी नशीन आकर खा गए। ना आप दोस्तों के साथ मुल्तान उर्स पर जाते और ना ही वो बला हमारे पल्ले पड़ती। माजरत, मगर जैसी माँ थी वैसी ही बेटी है। क्या दीनदार घरानों की लड़कियां इस तरह की होती हैं? अज़रा बेगम का इशारा फारूक साहब की लव मैरिज की तरफ था, जिसे वो बखूबी समझ रहे थे। अज़रा, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैंने ज़ाती तौर पर दुआ की खाला से दरख्वास्त की थी, तब वो अपने गद्दी नशीन को भेजने पर राज़ी हुई, वरना ये लोग यूं किसी के घर नहीं जाते। फारूक साहब की बात पर अज़रा बेगम चुप कर गईं। अज़रा, मेरा दिल कहता है कि मेरी बच्ची पर किसी ने तावीज़ कराया हुआ है। वो हिसाब लगा कर बताएंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। मुझे हर सूरत अपनी बेटी का घर बसाना है। भाई साहब, दुआ पर किसी ने कोई जादू टोना नहीं किया। खामखा पैसा बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आप भी। अच्छे खासे अक्लमंद हैं, फिर एक लड़की के हाथों बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं आप? वो आपकी नरमी का फ़ायदा उठा रही है। होश करें, कोई साया, कोई तावीज़ नहीं है उस पर। कहीं ऐसा ना हो कि वो इसी तरह आपकी नरमी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुंह पर कालक मल दे। अज़रा बेगम कहती हुई कमरे से बाहर निकल गईं, जबकि दुनिया जहान के सख्त मिजाज और मगरूर फारूक साहब अपनी बेटी की हालत ज़ार पर नोहा किना थे। लोगों के नज़दीक टेलीफोन एक ज़बरदस्त ईजाद है, मगर मुझे इससे शदीद नफ़रत है। मेरे बस में होता तो मैं सारी दुनिया से इस मनहूस ईजाद को ख़त्म कर देती, जो मेरी खुशियों का कातिल है। दुआ टेरेस पर खड़ी उस मनहूस दिन को याद कर रही थी। वो भी क्या दिन था। हर तरफ शादी का शोर था, घर मेहमानों से भरा पड़ा था। बाबा ने पूरे घर को बरकी कुमकुमों और लाइटों से सजाया था। आखिर उनकी शहजादी की शादी थी। बाबा, आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दुआ ने मोहब्बत से फारूक साहब की तरफ देखते हुए कहा था। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया है अपनी बेटी के लिए किया है। फारूक साहब की बात पर वो मुस्कुराती हुई अपने हिनाई हाथों को देखने लगी। आज तुम्हारी मेहंदी है और कल बारात, फिर मेरी बेटी बहुत दूर चली जाएगी। फारूक साहब अफसुर्दा हुए। मगर मेरी एक बात याद रखना दुआ, मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान से कर रहा हूँ, लेकिन अगर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में तुम्हें ये एहसास हो कि मेरा फ़ैसला गलत है या वो इंसान की जगह हैवान निकल आए, तो मेरी प्यारी और बहादुर बेटी, किसी की परवाह मत करना। ये घर तुम्हारे बाप का है और तुम्हारे लिए हमेशा इसके दरवाजे खुले रहेंगे। दुख मत सहना, घुट घुट कर मत जीना, वापस आ जाना, समझी? फारूक साहब की बात पर दुआ ने सर हिलाया था। बाबा क्या शाहिद अच्छे नहीं हैं? किसी खदशे के तहत दुआ ने बाप से पूछा। अच्छा है तो अपनी बेटी के लिए पसंद किया है ना उसे, वरना कोई ऐरा गैरा मुझे पसंद आता है क्या? फारूक साहब ने सवालिया नज़रों से दुआ की तरफ देखा। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो बहुत अच्छा है, मगर बेटा ये दुनिया अपना बातिल छुपाने में माहिर है, इसलिए समझाया है। फारूक साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। पीले जोड़े में वो बिल्कुल सरसों के खेत में खिला फूल लग रही थी। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी, जो उसके हुस्न को मज़ीद चार चांद लगा रही थी। हर कोई दुआ की किस्मत पर रश्क कर रहा था, सिवाय उसकी ताई और फुफ्फो के, जो हमेशा ही से उससे नफरत करती आई थी। वजह दुआ को भी कभी मालूम नहीं हो सकी। दुआ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। कसम से, तुम्हारी सास क्या ज़बरदस्त चीज़ें लाई है। सुना है एक हीरे की अंगूठी भी है। अनाया ने उसके पास बैठते हुए सरगोशी की। अच्छा? दुआ बस इतना ही कह सकी, मगर दिल में इतने चाहे जाने पर एक गरूर सा सर उठाने लगा कि मैं तो पैदा ही चाहे जाने के लिए हुई हूँ। मगर अल्लाह को गरूर करने वाला दिल बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो सब्र करने वालों के साथ है।
मेहंदी का फंक्शन पूरे अरूज पर था। कोई दुआ की किस्मत पर रश्क कर रहा था तो कोई हसद। फिर यूं हुआ कि किसी हासिद की नज़र दुआ को लग गई और वो पूरी तकरीब एक फ़ोन की घंटी खा गई। बारात देखना किसी को नसीब ही ना हुई। थोड़ी देर पहले जो लोग दुआ को खुशकिस्मत कह रहे थे, अब माँ की तरह मनहूस कहने लगे। एक सहर था जो टूटा। दुआ ने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए सर नफ़ी में हिलाया और आंखों से अश्क रवां थे। मेरे साथ ही क्यों अल्लाह जी, मेरे साथ ही क्यों? खानदान में और भी तो लड़कियां हैं, मगर हर बार मैं ही क्यों? आसमान की तरफ सर उठाए वो हमेशा की तरह शिकवा करने में मसरूफ़ थी कि गेट पर बजती मुसलसल बेल ने उसकी तवज्जो ज़बरदस्ती अपनी जानिब मबसूल कराई। शायद उसका मसीहा आन पहुंचा था। जदीद तर से आरास्ता ड्राइंग रूम में उस वक्त सरमद और शायान दीवान सेट पर बड़े ठाठ से बैठे थे। सामने टेबल पर रंग बिरंगे लजीज खाने रखे थे। यार, तेरे खालू के घर वाले मुझे बहुत पसंद आ गए हैं। मेज़बान को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सरमद ने पिज़्ज़ा के साथ इंसाफ करते हुए कहा, जबकि शायान कुछ उकताया उकताया सा लग रहा था। देख, सारी चीज़ें हमारे आगे रख कर खुद चले गए हैं, अब हम आसानी से खा सकते हैं सब। सरमद ने गुलाब जामुन मुंह में रखते हुए दोबारा शायान को मुखातिब किया। हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि मुझे ये बेकरी आइटम बिल्कुल पसंद नहीं। शायान टांग पर टांग रखे बेचैनी से हिला रहा था। ओह सॉरी, ये चीज़ें तो हम इंसानों के लिए हैं ना, और आप तो। सरमद अभी मज़ीद अपनी ज़ुबान के जोहर दिखाता, मगर फ़ारूक साहब को अंदर आता देखकर खामोश हो गया। आप भी खाएं ना, इतना लंबा सफ़र था, यकीनन थक गए होंगे। फ़ारूक साहब ने शायान को बैठा देखकर पूछा। नहीं, ये किसी के घर कुछ नहीं खाते। इससे पहले कि शायान बोलता, सरमद बोल पड़ा। क्यों? बेसाख्ता फ़ारूक साहब ने पूछा था। ये अकेले नहीं खाते, इनके साथ जिन परियां खाती हैं तो खुराक कम पड़ जाती है, लिहाजा ये किसी मुरीद को परेशान नहीं करना चाहते। ये सिर्फ आस्ताने पर ही खाना खाते हैं। सरमद की शरारत फ़ारूक साहब को समझ तो नहीं आई, मगर शायान का दिल किया कि उसकी गर्दन मरोड़ दे। आप भूखे प्यासे कैसे रहेंगे? फ़ारूक साहब सचमुच परेशान हो गए। आप मेरी फ़िक्र नहीं करें और बताएं कि मसला क्या है, शायान ने कदरे सख्त और संजीदा लहजे में पूछा। वो मैंने सारी बात नाइला से की थी। फ़ारूक साहब थोड़े से हिचकिचाए। नाइला खाला ने अब्बा से क्या कहा और क्या नहीं, मगर मुझे आपके मुंह से सुनना है। हाँ, एक और बात, सच बोलेंगे तो इलाज का फ़ायदा भी होगा, हिसाब भी दुरुस्त आएगा। झूठ की सूरत में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, क्योंकि अमल उल्टा हो जाता है। शायान ने फ़ारूक साहब को डराया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। फ़ारूक साहब ने गला साफ किया। सब यही कहते हैं। शायान के जवाब पर फ़ारूक साहब के साथ साथ सरमद ने भी हैरत से उसे देखा। मेरी इकलौती बेटी दुआ के साथ 3 साल से कुछ मसला हो गया है। वो रातों को उठकर चीखने लगती है, अपने बाल नोचती है, दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं करती। फ़ारूक साहब इतना कहकर खामोश हो गए, जबकि शायान उन्हें गहरी नज़रों से देख रहा था। और कुछ देर खामोशी के बाद शायान ने बात में पहल की। वो मुख्तलिफ चीज़ों से डरने लगी है। फ़ारूक साहब ने उलझते हुए दोनों को देखा। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है फिर? अक्सर लड़कियां अपनी बातें मनवाने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं। इकलौती औलादें अमूमन नॉर्मल नहीं होती। लड़कियां जज्बाती होती हैं और मामूली चीज़ों से डर भी जाती हैं। इसमें अजीब क्या है? शायान बदमज़ा हुआ। वो उन चीज़ों से डरती है जिनसे कोई बच्चा भी नहीं डर सकता, जैसे फ़ोन की घंटी, बारिश, म्यूज़िक, लाइटिंग, अरूसी मलबूसात वगैरह। फ़ारूक साहब के जवाब पर शायान के साथ साथ सरमद को भी हैरत का शदीद झटका लगा। क्या? दोनों ने बैक वक्त कहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो इन जैसी बहुत सी चीज़ों को देखकर शोर मचा देती है। फ़ारूक साहब ने ऐनक उतार कर अपनी आंखें साफ की थी। क्या वो शुरू से ऐसी है? शायान जानता था कि वो एक चंचल और शौक लड़की थी, मगर जानबूझकर सवाल किया। नहीं, पिछले 3 साल से वो ऐसी हो गई है। पहले बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल अपने स्कूल कॉलेज में पोजीशन होल्डर रही है वो। बहुत सारे तकरीरी मुकाबले भी जीते हैं। उसकी लिखाई बहुत खूबसूरत थी और पेंटिंग भी कमाल की करती थी। मगर अब फ़ारूक साहब की आवाज़ में नमी घुलने लगी। मगर अब क्या? सरमद भी अब पूरी तरह फ़ारूक साहब की तरफ मुतवज्जो हुआ था, मगर वो अब बिल्कुल खामोश हो गई है, बोलती ही नहीं। मेरे कान उसके मुंह से बाबा लफ्ज़ सुनने के लिए तरस गए हैं। फ़ारूक साहब शदीद जज्बात की रो में बह रहे थे। जहाँ तक मैं समझा हूँ, आपकी बच्ची के साथ साइकोलॉजिकल और मेडिकल इश्यूज़ हैं। आपने हमें खामखा ज़हमत दी। उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाएं। शायान ने उठते हुए मशवरा दिया।
सब कुछ कर लिया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने तौर पर सब कर चुका हूँ। नाइला, दुआ की छोटी खाला, कहती हैं कि किसी अल्लाह वाले को दिखाएं, शायद कोई जादू टोना हो। फारूक साहब की बात पर शायान मुस्कुराया था। सब अल्लाह वाले हैं, क्योंकि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मेरे ख्याल से एक औलाद ख़ास तौर पर बेटी के हक़ में बाप की दुआ से ज़्यादा किसी और की दुआ अहमियत नहीं रखती। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता कि बस इतनी सी बात है तो मैं कभी मुल्तान से यहाँ ना आता। खुद भी नमाज पढ़ा करें, घर वालों को भी ताकीद करें और अपनी बेटी को भी। सब ठीक हो जाएगा, चलता हूँ। शायान फारूक साहब का कंधा थपथपाता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जबकि शायान की इस कदर जल्दबाजी पर सरमद हैरान था। सब अल्लाह वाले नहीं होते, कुछ शैतान भी होते हैं। आपने पूछा नहीं 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, वो ऐसी क्यों हो गई? फारूक साहब की आवाज़ पर शायान ने रुक कर उन्हें देखा था। तलाक ऐसा बड़ा मसला नहीं जितना आप लोग बना रहे हैं, या आपकी बेटी ने बना लिया है। मेरे ख्याल से आपकी बेटी माजरत के साथ ड्रामे कर रही है। आजकल टीवी ड्रामों का असर लड़कियों ने कुछ ज़्यादा ही ले रखा है। 2 थप्पड़ लगाइए, ठीक हो जाएगी। शायान के इस कदर शफाक मशवरे पर सरमद को यकीन नहीं आया कि ये वही शायान बोल रहा है जो सारे रास्ते उसके लिए परेशान आया है। आप लगा दें 2 थप्पड़, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बशर्ते कि वो 2 थप्पड़ लगने से ठीक भी हो जाए। फारूक साहब के तंज को शायान ने वाज़े तौर पर महसूस किया। सोच लें हम ये झूठी मूठी के जिन इसी तरह निकालते हैं फिर। शायाना बिल्कुल फारूक साहब के मुकाबिल था। मुझे मंजूर है, हर तरीका मंजूर है, बस मेरी बच्ची ज़िंदगी की तरफ लौट आए। फारूक साहब का जवाब शायान को लाजवाब कर गया। तलाक की वजूहात क्या थी? अब की बार शायान ने दोबारा सोफे पर बैठते हुए कदरे नर्म लहजे में पूछा। वजूहात नहीं थी, बस एक वजह। फारूक साहब ने सर झुकाते हुए आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। वजह? शायान ने दोहराया। जी, बस एक वजह। फारूक साहब अब संजीदगी से शायान को देख रहे थे, जो हैरान था कि क्या थी वो वजह। सरमद ने तजस्सुस के मारे बेचैनी से पूछा। नामर्द। यक लफ्जी जवाब तीनों को खामोश कर गया। बस इस नमूने की कमी रह गई थी। इसको किसने बुलाया है? रुखसाना बेगम ने अजरा बेगम से पूछा। भाई साहब के ख्याल में उनकी बिटिया पर किसी ने जादू कर दिया है, तभी उसका घर नहीं बस रहा। ये कल का छोकरा उसका इलाज करने आया है। अजरा बेगम ने तमस्खुर से कहते हुए रुखसाना बेगम की तरफ देखा, जो उनकी बात पर हंस रही थी। चलो जी, ये शौक भी पूरा करके देख लें। वैसे हद है, मैंने ऐसा बाप आज तक नहीं देखा। लोग तो ऐसी बातें छुपाते हैं और बेटी को सख्ती से भी मना करते हैं कि किसी से जिक्र मत करना, लेकिन यहाँ तो भाई साहब इश्तहार लगा रहे हैं। रुखसाना बेगम के लहजे में हकारत थी। मामा, आप इधर चचा के पोर्शन में आई बैठी हैं और उधर अब्बू का फ़ोन आया हुआ है। अनाया ने नाराज़गी से माँ की तरफ देखा, जो हर वक्त फारूक चचा के पोर्शन में अजरा फुफ्फो के साथ गप्पे मारती रहती थी। आज क्यों फ़ोन किया है? अभी कल तो बात हुई है, खैर है? तूने तो कोई शिकायत नहीं लगाई। एक तो मेरी औलाद ही मेरी दुश्मन है, इनके होते हुए मुझे किसी दुश्मन की कमी महसूस नहीं होती। रुखसाना बेगम बोलती हुई अपने पोर्शन की तरफ चल दी, जबकि अनाया वहीं फुफ्फो के पास बैठ गई। फुफ्फो, ड्राइंग रूम में कौन है? ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ आसानी से बरामदे में पड़े तख्तपोश पर बैठी अनाया को सुनाई दे रही थी। भाई साहब ने मुल्तान से किसी पीर को बुलवाया है, बल्कि पीर नहीं, यूँ समझ लो उसके लिए खेलने के लिए एक नया खिलौना ख़रीदा है। अजरा बेगम के जवाब पर इनाया ने सर नफ़ी में हिलाया। फुफ्फो, आप कैसी बातें करती हैं? मेरी तो दुआ है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फिर हम पहले की तरह खेला करेंगे। हाय, कितना मज़ा आता था। अनाया ने माजी को याद करते पुरजोश लहजे में कहा। अनाया, होश करो, मुझे और तुम्हारी माँ को उसके साथ तुम्हारा उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। अव्वल तो वो बिल्कुल ठीक है, उसे आदत हो गई है नए नए मर्दों से शादी करने की। दूसरा, अगर ऐसा ही कुछ है तो पागल खाने भेज देना, ताकि हम सब की जान भी सुखी हो। अजरा बेगम कहती हुई तख्तपोश से नीचे उतर आई। गलत बात है, पता नहीं क्यों आप और मामा उसके साथ ऐसा सलूक करती हैं, हालांकि वो बहुत अच्छी है। अनाया को दुख हुआ था। लड़की, जितनी तेरी उम्र है ना, उससे ज़्यादा हमारा तजर्बा है। वो लड़की बहुत चालाक है, तेरी जैसी को तो वो घुमा कर रख दे 1 मिनट में। अजरा बेगम ने चुटकी बजाई। इससे पहले कि अनाया मज़ीद कुछ कहती, ड्राइंग रूम से निकलते फारूक साहब के पीछे शख्स को देखकर वो हैरान रह गई। सफ़ेद सूट, अजरक की चादर कंधे पर डाले, हल्की हल्की बड़ी दाढ़ी उसके सफ़ेद रंग को मज़ीद उजागर कर रही थी। दराज कद और कसरती वजूद। अनाया समझने से कासिर थी कि पीर कौन है।
बेटा ये मुल्तान से आए हैं, दुआ के कज़न मखदूम शायान कुरैशी और ये उनके दोस्त सरमद हैं। फारूक साहब ने बारी बारी दोनों का तारुफ करवाया, जिस पर सरमद ने सर हिलाकर दोनों को सलाम किया, जबकि शायान चेहरा फेर गया। दुआ का कमरा ऊपर है। फारूक साहब ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया तो अजरा फुप्पो को होश आया। अरे ऐसे कैसे जवान जहान लड़कों को उसके कमरे में ले जा रहे हो? अजरा ने दुहाई दी, मेरे ख्याल से आप पहले अपने घर वालों से मशवरा कर लें। शायान अपनी रोबदार आवाज़ में मुड़ते हुए बोला तो अनाया उसकी आवाज़ में ही खो गई। पहली नज़र की मोहब्बत का वजूद होता है, वो आज इस बात पर ईमान ले आई थी। इतना वजी मर्द उसने आज तक नहीं देखा था। अनाया तो बस उसके सहर में ही खो गई थी। अजरा आप खामोश रहिए, फारूक साहब ने गुस्से से उन्हें जवाब दिया और शायान को ऊपर चलने का इशारा। तौबा तौबा, ये क़यामत की तो निशानियां हैं। बाप खुद बेटी के कमरे में जवान मर्द लेकर जा रहा है। भाई साहब की अकल तो घास चरने चली गई है। लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। चल तेरी माँ को बता कर आती हूँ। अजरा बेगम ने अपनी चादर दुरुस्त की और अनाया को अपने साथ चलने का इशारा किया, मगर वो तो मुसलसल सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, जहाँ से अभी अभी शायान गुजरा था।